Hello students. So we are doing chapter 3, that is current electricity, and today we will study next topic, that is Kirchhoff laws and numericals and electric energy and power. तो हमने अभी तक लास्ट टॉपिक में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा था. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज Kirchhoff laws and their numericals. So what is Kirchhoff's law of electricity? So basically Kirchhoff has two laws. First is the Kirchhoff's current law or KCL or the junction rule. ठीक है, that gives the law of conservation of charge. तो क्या है Kirchhoff law? Any junction, at any junction the algebraic sum of current entering the junction is equal to algebraic sum of current leaving the junction. बहुत easy है. Kirchhoff law क्या कहता है कि सपोज एक जंक्शन है जिसपे बहुत सारे करंट्स आ रहे हैं, कुछ करंट अंदर की तरफ आ रहे हैं जंक्शन के, कुछ करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं. सो टोटल अमाउंट ऑफ करंट दैट इज एंटरिंग द जंक्शन, algebraic sum of current that is entering the junction is equal to total amount of current that is leaving the junction. Or mathematically the law can be expressed as summation of delta is zero. That means total current whether it is entering or leaving, the total sum of total current, algebraic sum of total current is zero. So suppose we have this 5 currents, I1, I2, I3, I4 and I5. So what this Kirchhoff's law says, I1 is entering, I3 is entering, I2 is leaving, I4 is leaving, I5 is leaving. So हम एक कन्वेंशन ले लेते हैं कि जो करंट एंटर कर रहा है हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं इस जंक्शन पे, और जो करंट लीव कर रहा है उसको नेगेटिव ले रहे हैं. तो क्या होगा, I1 माइनस I2, वाई माइनस बिकॉज I2 इज लिविंग, प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो. I1 and I3 are entering the junction and these threes are leaving the junction. So this is the algebraic sum of all the currents at any junction equal to zero. और we can say that अगर हम इसको rearrange करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, we can say the incoming current equal to outgoing current. That means the current entering the junction is equal to current leaving the junction. That is Kirchhoff's first law और Kirchhoff current law और junction rule. ठीक है, इसको Kirchhoff current law भी बोलते हैं और इसको junction rule भी बोलते हैं. Clear? So the charges cannot accumulate at a junction. The number of charges that arrive at a junction in a given time must leave in the same time in accordance with the conservation of charge. तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस है बेसिकली कि जो भी चार्ज अगर आएंगे, यहाँ से करंट आ रहा है दैट मीन्स चार्ज आ रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो जंक्शन पे एक्यूमुलेट नहीं होंगी, तो जितने भी चार्ज यहाँ आते हैं उतने ही चार्ज आगे लीव आउट हो जाएंगे, एंड दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो दिस इज Kirchhoff's current law. Kirchhoff current law क्या बोलता है, total amount of current that is entering or leaving the junction, the algebraic sum of those current is equal to zero, or we can say that the total amount of current entering the junction is equal to total amount of current leaving the junction. That is Kirchhoff's current law. Clear? Next law of Kirchhoff's is Kirchhoff's voltage law. ठीक है, नेक्स्ट लॉ इज Kirchhoff वोल्टेज लॉ, KCL. वो क्या था, Kirchhoff करंट लॉ. दिस इज Kirchhoff वोल्टेज लॉ, और वी कैन से इट्स अ लॉ लूप रूल. ठीक है, जैसे हम उसको जंक्शन रूल बोलते हैं, इसको लूप रूल, मतलब इसमें लूप बनेगी, कुछ ना कुछ क्लोज्ड सर्किट होगा. और दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. So what is this? Around any closed loop, the algebraic sum of changes in potential must be zero. So क्या है, at any closed loop, किसी भी एक क्लोज लूप में algebraic sum of changes in potential must be zero. और the algebraic sum of EMF in any loop of a circuit is equal to the sum of product of current and resistance in it. The algebraic sum of EMFs in any loop, एक किसी भी सर्किट में जितनी भी EMF है, मतलब जितने भी सेल हैं, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन लूप. तो मैथमेटिकली आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. मैथमेटिकली दिस लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज समीशन ऑफ डेल्टा V इज जीरो, और वी कैन से दैट समीशन ऑफ E इज इक्वल टू समीशन ऑफ IR. क्यों, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में V इक्वल टू E माइनस IR, ये पढ़ा था हमने. तो वही है कि क्या इसके क्या बोलते हैं, अराउंड एनी क्लोज लूप द algebraic sum of change in potential must be zero. चेंज इन पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं E माइनस IR. ठीक है ना, तो टोटल जिसमें V को क्या लिख सकते हैं, E माइनस IR ना, तो इससे भी आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं और इससे भी.
सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन एनी लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट। सो ई इक्वल टू आई आर, समीशन मतलब जितना भी लूप में बैटरीज हैं उसको यहाँ लिख देंगे और जितना भी करंट इनटू रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल डेफिनेशंस थी। नोट दैट द पाथ कैन बी ट्रांसफर्ड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ लूप। ये क्या है, जब हम लूप में पाथ ट्रैवल कर रहे होंगे तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं या क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। बेसिकली हमें मैथमेटिकल देखना है इसका, क्योंकि इसके ऊपर जनरली 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम्स में आता है। सो इसका कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं। साइन कन्वेंशन इसको करने के सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ तो सिंपल है, जो करंट जैसे हम पैरेलल रेजिस्टर्स इन पैरेलल में करते हैं ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो बेसिकली वो किरचॉफ लॉ ही है। जितना करंट एंटर कर रहा है I करंट टोटल इक्वल टू जितना करंट लीव कर रहा है I1 प्लस I2, ठीक है। तो वो किरचॉफ करंट लॉ है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में कुछ साइन कन्वेंशंस लेते हैं, उसको देखते हैं। सो फर्स्ट इज द ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव when we transfers from negative to positive terminal of cell through electrode। सपोज मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, सेल है। तो जब मैं इधर से जाऊंगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा, तो मैं ईएमएफ को क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, ठीक है। बैटरी का जो ईएमएफ होगा सपोज 5 वोल्ट है तो मैं प्लस 5 वोल्ट लूंगा न्यूमेरिकल में, ठीक। इसको एक बार बस पढ़ लेते हैं और जब मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ अभी इसका तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज द ईएमएफ इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी ट्रांसफर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव जाएंगे हम सेल में तो ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, ठीक है, हम लूप में पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे। थर्ड इज द I इंटू आर प्रोडक्ट, I इंटू आर मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस प्रोडक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव इफ द रेजिस्टर इज ट्रांसफर्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट। सपोज हम किसी लूप में घूम रहे हैं, ठीक है, किसी लूप में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर उस लूप में इस साइड जा रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव IR लेंगे, ठीक। और अगर हम करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है उस लूप में और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम अपना लूप खुद डिसाइड कर सकते हैं, हम इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, कैसे भी जा सकते हैं, आंसर दोनों से आ जाता है। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है रेजिस्टेंस में, तो हम उसको क्या लेंगे, V इक्वल टू माइनस आई आर। हेयर सॉरी दिस इज अ मिस्टेक, हेयर V इक्वल टू माइनस आई आर, लेट मी करेक्ट दिस। सो हेयर V इक्वल टू माइनस आई आर। तो बेसिकली ये 4 साइन कन्वेंशन हैं जो हमें याद रखना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ठीक है। मैटर ज्यादा इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करता और ये कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है आपको। अभी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल में, तो सपोज वी आर गिवन दिस सर्किट, एक मेरे पास सर्किट है, क्वेश्चन हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें यहाँ 5 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ 4 वोल्ट का बैटरी है, रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और करंट भी दे रखा है। अब जरूरी नहीं है जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर करंट गिवन हो, ठीक है, नहीं हुआ तो अपने आप करंट की वैल्यू ले सकते हैं, जितने लूप बनाना है उतने करंट आप ले सकते हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट I1, हमने I1 करंट कैलकुलेट करना है। तो सपोज यहाँ करंट नहीं दिए हुए तो मैंने क्या लिया कि सपोज इस बैटरी 4 वोल्ट से I करंट निकल रहा है, ठीक है ना, I करंट पास इस बैटरी 4 वोल्ट से निकल रहा है, और तो वो करंट इस जंक्शन पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। सपोज इस जंक्शन पे यहाँ I1 करंट है, हमने सपोज कर लिया यहाँ I1 करंट है, तो यहाँ कितना जाएगा, रिमेनिंग करंट जाएगा। रिमेनिंग करंट कितना है, I माइनस I1, ठीक है। क्यों, किरचॉफ करंट लॉ, टोटल करंट कितना जा रहा है, I जिस जंक्शन पे एंटर कर रहा है और लीव कितना कर रहा है, यहाँ पर सपोज I1 लीव कर रहा है तो रिमेनिंग कितना लीव करेगा, दिस I माइनस I1 जो इस जंक्शन पे जाएगा। क्लियर, अभी I माइनस I1 करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इस जंक्शन पे आगे क्या होगा, ये करंट डिवाइड, और यहाँ पर कौन सा करंट मिलेगा इस जंक्शन पे, I1। सो I1 करंट यहाँ आ रहा है और यहाँ I माइनस I1, तो रिमेनिंग कितना करंट यहाँ पास होगा, I1, और वो यहाँ पर वापिस आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा सर्किट का जो करंट का एक्सप्लेनेशन है वो ठीक है यहाँ। दैट मीन्स हमने करंट का जो डिनोशन किया है वो ठीक है। तो हमें करंट का डिनोशन कर लेना है, उसके बाद हमारे को लूप लेना है, ठीक है, लूप लेना है। तो हमने देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज में, आप किसी में भी ले सकते हैं, हमें बस साइन कन्वेंशंस ध्यान में रखने हैं कि साइन कन्वेंशंस क्या हैं। सो अप्लाइंग KVL टू लूप P R Q P, so this is P, this is R, this is Q,
दिस इज P, तो हम PRQP में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। जो भी हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा था, क्या बोलता रहा, सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ I मल्टीप्लाई बाय R। क्लियर? सो PRQR, इस लूप में हमने बात करनी है PRQR। सो PRQR में बात करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ EMF देख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे कितना EMF है, यहाँ एक बैटरी है, कितनी 4 वोल्ट। हम कैसे ट्रांसफर्स कर रहे हैं पाथ को, ऐसे ट्रांसफर्स कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट मीन्स हम बैटरी में देखें, ये सेल पे देखें तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। और मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया, अब जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो हम क्या लेंगे, +4, ठीक है, +4 लेंगे जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं सेल के अंदर से, हम ऐसे घूम के यहां से आए माइनस से प्लस की तरफ, दैट मीन्स +4। क्लियर? सो हमने E की जगह लिख लिया +4 इक्वल टू, अब I इंटू आर का हमें कॉम्बिनेशन देखना है। अब हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ क्या है, करंट I1 इंटू आर क्या है, 20 ओम। हम भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम क्या लेंगे, +IR, ठीक है, +IR लेंगे। और अगर करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता और हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते तो हम लेते -IR। साइन कन्वेंशन जो आपको 4 साइन कन्वेंशन बताए हैं, बस उसी को ध्यान में रखना है। सो ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू I1 प्लस, फिर यहां से गए हम इधर आए, अब I करंट यहां आ रहा है इस रेजिस्टर से, ठीक है, तो यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, I इंटू आर, I इंटू 60 ओम। और हम भी अभी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सो 60I। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो लेट्स ट्राई नेक्स्ट इक्वेशन। हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास एक ये लूप है, हम एक ये लूप ले लेते हैं दूसरा। हमें I1 करंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 2 अननोन है, I और I1, तो हमें कम से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए। तो हम ये वाला लूप कंसिडर करेंगे, ये वाला लूप मतलब PSRP, ठीक है ना, PSRP लूप कंसिडर करेंगे। अब देखिए हम PSRP लूप में ऐसे जा रहे हैं, P से S फिर R फिर P। हम इधर जा रहे हैं, सबसे पहले बैटरी को देखो। अब बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं हम। जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो क्या लेते हैं, -5, ठीक है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या लेते हैं हम, -5। तो क्या लेंगे, -5 इक्वल टू, इधर जाएंगे, अब हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, I1 माइनस I2 इंटू 200, I इंटू आर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। और फिर यहां से अब हम इधर जा रहे हैं लूप में, यहां से R से P की तरफ आ रहे हैं, बट करंट कहां जा रहा है, 20 ओम रजिस्टर में, P से R की तरफ। दैट मीन्स माइनस साइन आएगा, -20 इंटू I1। तो हमारे पास क्या आया, -5 क्यों, क्योंकि बैटरी में हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए, इसलिए -5, ठीक है। यहां पर हम जैसे जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इक्वल टू 200 इंटू I1 माइनस I1। और यहां से हम जिस डायरेक्शन में, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, R से P, ऐसे लूप घूम रहा है क्लॉकवाइज, और करंट कैसे जा रहा है, P से R। दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा, -20 इंटू I1। तो बस आपको वो साइन कन्वेंशन याद रखने हैं 4। जब हम बैटरी से नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएं तो पॉजिटिव EMF आएगा, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव बैटरी की तरफ जाएं तो नेगेटिव EMF आएगा। जिस डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर करंट भी उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो +IR आएगा। जिस डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर रहे हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट ट्रैवल कर रहा है तो -IR आएगा। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, बस। अब बहुत सिंपल है, बेसिकली क्या है, एग्जाम में आपको यही 2 इक्वेशन ही बनानी है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो एग्जाम में तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 इक्वेशन जिसने सही बना दी, उसके बाद तो बेसिक मैथमेटिक्स है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कैसे भी, ये 2 इक्वेशंस को आप, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करके क्या आएगा, हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर देंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। आपने बहुत इजीली अपने लोअर क्लासेस में किए होंगे ऐसे सब्स्टिट्यूशन 2 इक्वेशन की। यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, या इन दोनों में प्लस माइनस कर दो कुछ मल्टीप्लाई करके, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.064 एम्पियर। तो इसी तरह हमने I1 की वैल्यू निकाल ली। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछते कि I की वैल्यू निकालो, तो I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो हम उससे यहाँ I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी। तो हम किरचॉफ लॉ की ये एप्लीकेशन है, बेसिकली न्यूमेरिकल्स। किरचॉफ लॉ को हम यहाँ पर इस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। जनरली यहाँ अभी इस क्वेश्चन में हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया और उससे हमने करंट निकाला I1 में। So here is the note. You have to only remember sign conventions and
मेक इक्वेशंस, ठीक है। आपको साइन कन्वेंशंस और इक्वेशंस कैसे लिखनी है बस वो उतना ध्यान रखना है, रेस्ट इज जस्ट अ मैथमेटिकल सॉल्विंग। सो एवरी ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इज इन फाइनल बोर्ड एग्जाम। हमेशा बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से सॉल्व करने के लिए आता है न्यूमेरिकल। So let's take the next numerical. So we have here, we have to calculate the potential difference between B and D, B और D के बीच में। तो ये मेरे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में मुझे इस B और D पॉइंट के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बहुत इजी है, किरचॉफ लॉ लगाना है। बेसिकली B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। तो अगर मुझे B और D के बीच में मतलब इसके अक्रॉस मुझे करंट पता चल गया तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बी और डी के बीच में। तो मुझे क्या निकालना है, सेम ये I1 करंट निकालना है। इसमें पिछले न्यूमेरिकल से क्या फर्क है कि इसमें 2 बैटरीज हैं, देखो यहीं पर, ठीक है, यहाँ भी 2 बैटरीज हैं। क्लियर। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, सेम प्रोसीजर। तो सपोज यहाँ भी देखो इसमें करंट दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में। अगर आपको करंट सपोज नहीं दिया हुआ तो आप किसी भी एक लूप से क्या लेंगे, सपोज एक लूप से करंट आई आ रहा है तो यहाँ पर डी जंक्शन पे 2 सेपरेशन हो रहा है। तो एक यहाँ पर जो करंट जा रहा है सपोज I1 जा रहा है और दूसरा यहाँ सपोज I2 जा रहा है। अब आप देखो इसको यहाँ I2 लिखा हुआ है, या आप इसको क्या लिख सकते हो, I माइनस I1 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप अपने हिसाब से हर ब्रांच में करंट दे सकते हो। बस क्या याद रखना है कि टोटल करंट सेम होना चाहिए। सपोज यहाँ से I करंट आ रहा है, इधर I1 गया, ठीक है, यहाँ से I1 गया और यहाँ I2 गया, तो I1 I2 यहाँ मिलके इस जंक्शन पे कितना बना देंगे, यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, तो फिर से I करंट आना चाहिए ना, तो I करंट यहाँ वापस आ गया। सो टोटल करंट सेम रहना चाहिए, ठीक है, मतलब किरचॉफ करंट लॉ भी एप्लीकेबल होना चाहिए। सो अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ एट जंक्शन डी, तो किरचॉफ करंट लॉ लगाया तो क्या, किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलेगा कि टोटल अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग दिस जंक्शन दैट इज I is equal to total amount of current leaving the junction that is I1 plus I2. So I equal to I1 plus I2, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करंट ले सकते हैं। अगर यहाँ I लिया है और यहाँ I1 लिया है तो I2 की जगह I माइनस I1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उससे भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। सो नेक्स्ट वी हैव टू अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। करंट लॉ हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, हमने क्या अप्लाई करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक बार इस लूप में कर लेंगे और एक बार इस लूप में कर लेंगे, यही दोनों लूप हैं जिसमें बैटरीज भी लगा हुआ है। क्लियर। और कोई लूप नहीं बन रहा, बेसिकली यही दोनों लूप हैं, इसी दोनों में हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सो अब इस लूप में देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं हम, ठीक है ना, यहाँ मैंने एरो बनाया हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज मूव करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हमने सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे ADBA में, ADBA ये ऊपर वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, और हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड में टोटल EMF लिखते हैं। तो करंट देखना है बैटरी के अंदर से, सेल के अंदर से कैसे आ रहा है। तो हम इधर से आ रहे हैं, तो कैसे आ रहा है, यहाँ से हम इस साइड आ रहे हैं, हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे घूम रहे हैं ना, हम इस साइड घूम रहे हैं। तो 1 वोल्ट वाली बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब -1, और 2 वोल्ट वाली बैटरी में हम कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यहाँ से गए, यहाँ इसके अंदर से बाहर कैसे निकलेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। सो +2 -1, तो लेफ्ट साइड पे कितना आ जाएगा, +2 -1, ठीक है। ये तो आ गया EMF, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे I × R। हम ऐसे घूम रहे हैं और करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, तो 2 ओम में करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, I1। सो 2 × I1, ठीक है ना, ये दिखा मैंने 2 × I1। फिर हम ऐसे जा रहे हैं I, यहाँ 2 × I, हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है इस 2 ओम वाले रजिस्टर में। सो 2 × I, ठीक है, और फिर ये 1 ओम में 1, हम भी ऐसे जा रहे हैं लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, और करंट भी ऐसे मूव कर रहा है I करंट। सो I × 1 दैट इज I। सो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गई इस लूप के लिए। क्या डिफरेंस आया था पिछले न्यूमेरिकल से, यहाँ 2 बैटरीज हैं, तो जितनी भी बैटरी हैं बस उसमें साइन कन्वेंशन याद रखना है। नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो +2, और पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो -1। सो +2 -1, ठीक है। तो क्या रिजल्टेंट हो जाएगा इसका, 2 - 1 1, और यहाँ कितना बन जाएगा, 2I + I 3I + 2I। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, इस लूप से। ऐसे ही अब इस लूप से इक्वेशन आनी चाहिए। आप इसको पॉज करो और अपनी कॉपी पे अभी खुद लिखो कि इस लूप से क्या इक्वेशन आएगी, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या इक्वेशन आएगी, ठीक।
आई होप आप सबने पॉज करके अभी इक्वेशन अपने पास लिख लिया है। तो यहाँ हम देखते हैं इस लूप में जब हम केवीएल लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो क्या इक्वेशन आएगी। अब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यहाँ माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो +3, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो -1। सो +3 -1 इज आर ईएमएफ। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो या राइट हैंड साइड पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 = 3 और 3 = 2 एक ही बात है। वैसे होता नहीं है 2 = 3 3 = 2। आई वांट टू से कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप इंटरचेंज कर दोगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो आई एम श्योर आपका यही आया होगा इक्वेशन 3i2 + i2 - 2i1 = 2। क्लियर। तो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। तो हमने 3 इक्वेशन है हमारे पास यहाँ। अब 3 इक्वेशन क्यों बनाई हमने, एक इक्वेशन हमने यहाँ बना ली i = i1 + i2। ठीक है, और यहाँ 3 ही करंट है i, i1, i2, 3 इक्वेशन है तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब 3 अननोन है हमारे पास, 3 अननोन है और 3 ही इक्वेशन है, तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस 3 इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उस i1 i2 की टर्म्स में आ जाएगी और यहाँ से i1 या i2 की टर्म्स में एक और इक्वेशन बना लेंगे। सो तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम मैथमेटिकली और हमारे पास i1 i2 और i की वैल्यू आ जाएगी करंट की, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत इजी है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया। जरूरी क्या है इन इक्वेशंस को लिखना कि ये इक्वेशन यहां तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हमें साइन कन्वेंशंस याद रखने हैं। क्लियर। सो i1 i2 और i आ गया, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन b एंड d। b और d के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, i1 × 2। तो i1 की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है, तो i1 v1 इज i1 × 2। सो i1 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ i1 दैट इज 2/13। ठीक है ना, i1 × 2 दैट इज 2/13। अब आई एम श्योर आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यहाँ i1 = -1/13 है और यहाँ वोल्टेज सर कह रहे हैं 2/13, तो माइनस साइन कहाँ गया। ये बेटा ये जो i1 = -1/13 है, अब आप खुद सोचो अगर कोई स्टूडेंट इसको i1 ऐसे ले लेता कि i1 इस डायरेक्शन में आ रहा है फ्रॉम b टू d, यहाँ i मिल रहा है और इस वाली ब्रांच में i + i1 जा रहा है, तो उसके लिए क्या आता है, उसके लिए आंसर आता है +1/13 अगर i1 इसकी तरफ डायरेक्शन में आता है। ठीक है, सो इट इज जस्ट अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कि i1 -1/13 है, दैट मीन्स हमने जो हम या तो हमने जो आंसर दिया है उससे ऑपोजिट पाथ लिया है। ठीक है, उससे ऑपोजिट पाथ लिया है या करंट के डायरेक्शन उल्टी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वोल्टेज इज जस्ट करंट इनटू वोल्टेज क्या होगी, करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस। करंट कितना है, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/13 into 2, that is 2/13 volt. So this is the potential difference between B and D. So here is your homework assignment, just take a screenshot of it and do it in your homework copy. So this is here we have to calculate the current through 40 ohm and 20 ohm resistor. तो हमें इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस क्या निकालना है, 40 ओम रेजिस्टर और 20 ओम रेजिस्टर के लिए हमें इसमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो देखो इसमें करंट नहीं दिया हुआ, आप अपने आप करंट की वैल्यू सॉल्व करो, अपने आप करंट की वैल्यू लो, i1 i2 जो भी आपको लेना है, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाओ और मुझे आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। अब किरचॉफ लॉ यही था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके बेस पे हम इसकी एप्लीकेशंस भी करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर वायर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा क्योंकि वो सब कनेक्टेड है। यहाँ पर हम बात करते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट की। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट एक जस्ट थियोरेटिकल टॉपिक है। सो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट में आपको जूल्स लॉ अपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक current is passed through a conducting wire, the electric energy is converted into heat energy and that is called heating effect of electric current और thermal effect of electric current। मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी वायर से तो वायर वो क्या हो जाती है, वायर हीट हो जाती है ना, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट इज जूल्स लॉ एंड द इफेक्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जूल्स हीटिंग। और जूल्स लॉ क्या होता है, जूल्स लॉ gives that Q = I² RT, where Q is in joule, that is energy, heat energy, I is in ampere, R is in ohm and T is in second. So Q = I² RT, or we can write Q = I² RT by J, where Q is in calorie। तो यूनिट यहाँ पर हीट है जो वो जूल में है हीट एनर्जी, और यहाँ क्या है, हीट एनर्जी कैलोरीज में है, तो हम डिवाइड बाय J कर देंगे। ठीक है ना, दैट इज इन कैलोरी।
So let's study the cause of heating effect of current. So heating effect of current को क्यों होगा? हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी ऐसा पढ़ा था कि जब चार्ज आता है उनमें कोलिजन होता है, ठीक है, वही है यहाँ पर. So when a battery is connected to the ends of conductor, electric field is set up. The free electrons move in direction opposite to field. इतना हम पढ़ चुके हैं. They undergo collision with the positive ions and atoms of conductor. The average kinetic energy of vibration of ions and the atoms increases and hence the temperature decreases. So क्या है बेसिकली, जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं कंडक्टर से तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने स्टार्ट करते हैं, उनका कोलिजन होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, आयंस के साथ, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उसमें वायर में हीटिंग इफेक्ट आने लगता है. सो दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. नेक्स्ट इज electric power. So what is electric power? Electric power is the rate at which work is done by an electric current. That is electric power. पावर का फॉर्मूला आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, V इक्वल टू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर, वेयर V is the voltage, I is the current, R is the resistance. SI unit of power is watt. Other units are kilowatt and horsepower. 1 kilowatt is 1000 watt, 1 horsepower is 746 watt. जस्ट एक रिमाइंडर है, बहुत इजी टॉपिक है ये, आपने सब किया हुआ है, थियोरेटिकल है. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? एनर्जी इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी. एनर्जी को पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम भी लिख सकते हैं, इसलिए जो पावर वाला फॉर्मूलाज हैं उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी. सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, 1 यूनिट 2 यूनिट कितना यूनिट चला है, किलोवाट आवर. And 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 raised to power 6 joules. So next is electric fuse. So what is electric fuse? Electric fuse is a protective device used in series with an electric circuit or electric appliance to save it from damage due to overheating produced by strong current in the circuit or appliance. Fuse is generally made up of alloy of 63% tin and 37% lead. It has high resistance and low melting point. तो फ्यूज आप सबको पता है, फ्यूज क्या है, एक डिवाइस है जो सीरीज में लगता है ताकि अगर बहुत ज्यादा करंट आ जाए सर्किट में तो वो क्या हो जाए, वो फ्यूज ब्रेक हो जाए. ब्रेक मतलब तभी उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. लो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो वहां ब्रेक हो जाएगा और करंट को आगे डिवाइस को खराब करने नहीं देगा, ठीक है. उसका हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट. क्लास 10th का टॉपिक है बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये सब, इट्स जस्ट अ रिविजन. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस यूज निक्रोम वायर. तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, ये जनरली कहाँ होता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस में होता है, ठीक है, जैसे आयरन है, हीटर है, इन सब में तो वो निक्रोम वायर का यूज करते हैं, ठीक है ना. निक्रोम वायर में जनरली एलॉयज ऑफ निकल और क्रोमियम, निकल और क्रोमियम का एलॉय, निकल और क्रोमियम मेटल से एलॉय बनता है, उसको हम निक्रोम वायर बोलते हैं. सो इट इज यूज्ड बिकॉज, ये क्यों यूज होता है, इट हैज हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट मीन्स इट हैज हाई रेजिस्टिविटी, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या, हम करंट इतना ज्यादा ले रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, आयरन है या हीटर है, ठीक है ना, तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी काम आएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो तभी मेल्ट हो जाएगा और हमारे को हीट नहीं मिलेगा. इट हैज हाई मेलिएबिलिटी, इट इज नॉट इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता. एंड वन मोर नोट, फॉर अ गिवन वी, एक गिवन पोटेंशियल के लिए पी पावर जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by R. दैट मीन्स पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है. इससे हमें क्या पता चलता है, दैट हायर द पावर ऑफ अप्लायंस मोर इज द करंट ड्रॉन. जितनी ज्यादा पावर होगी अप्लायंस की उतना ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा. जैसे बड़े बड़े अप्लायंस होते हैं, एसी हो गया, ठीक है ना, मोटर हो गया, जितनी उसकी जितनी ज्यादा पावर होती है उतना ज्यादा वो करंट ड्रॉ करता है. और दूसरा क्या है, हायर द पावर ऑफ अप्लायंस लेस इज द रेजिस्टेंस. जितनी पावर अप्लायंस की पावर ज्यादा होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा. तो जस्ट एक थियोरेटिकल टॉपिक था, आपको बहुत इजी आपके लिए, एक बार बुक से गो थ्रू करना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. मेनली आज के लेक्चर में क्या था, किरचॉफ्स लॉ का न्यूमेरिकल जो मैंने होमवर्क दिया उसको सॉल्व करना. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.